Live session, one-to-one interaction, no audio and video lag. Detailed practical teaching, flexible class option with video backup facility. Hello everyone, this is our second fast track class of accountancy. Okay, this is not the normal batch. ये second fast track course है अपना, जहाँ पे I'm just sharing important concept just to bring the syllabus a bit forward. ठीक है, so detailed class तो obviously नहीं है अपना, but it is well sufficient for you to clear all the problems, all the issues that you have while studying. okay, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा पहले का आपका, एंड देन वी विल कंटिन्यू इन अ रेगुलर बैच. ठीक है ना. तो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ द फास्ट ट्रैक क्लासेस. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास आई हैव जस्ट टॉट यू दैट व्हाट एक्चुअली हैपन्स बिटवीन अ पार्टनर एंड अ पार्टनरशिप. ओके, पार्टनर एंड पार्टनरशिप में व्हाट एक्चुअली हैपन्स वी हैव डिस्कस्ड कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो पार्टनर्स को क्या करता है, बहुत कुछ पे करता है, बिकॉज पार्टनर इज टू वर्क ओवर देयर. ठीक है ना. And partnership is actually the business, so partnership is liable to pay to the partners. ठीक है, तो what they pay salary, commission, interest on capital. okay, these things are paid, ठीक है, by partnership firm to the partners. all right, and in return if partner will draw their capital from the firm, partner will take back their capital if they are doing drawings. then in this case पार्टनर्स ड्राइंग्स लेके जा रहे हैं ना. ड्राइंग्स करना मतलब क्या होता है, कैपिटल विड्रॉ करना. दे आर विड्रॉइंग द कैपिटल. इन सच अ केस पार्टनर्स विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओके, सो फ्रॉम अ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू डिस्कस फ्रॉम अ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू what are the income and expenses that we are required to treat. so if I talk about the expenses, so from a view of partnership firm, the partnership firm used to pay salary to its partner. The partnership firm used to pay commission to its partner. The partnership firm used to pay interest on whatever capital being invested by the partners in the partnership firm. Okay. Apart from that, if any partner is helping the firm by providing loan, partnership is going through a bad time, and in such a situation any partner is helping the partnership firm by advancing some loan, so the partnership is also bound to pay interest on loan to the partner who has actually advanced the loan. what I actually want to say, suppose the partnership is going through a bad time and it requires a sum of rupees 30,000 to settle a dispute. A dispute is going on between a partnership firm and a creditor, outsider. okay, between a partnership firm and an outsider, and in such a case the court held that the partnership firm will have to pay a sum of rupees 30,000 to the outsider, to the creditor, but the partnership firm is not having sufficient cash. In such a case it might so happen a partner Mr. A is providing a loan to the partnership firm. In such a case it might so happen that Mr. A partner is providing a loan to the partnership firm. okay, तो Mr. A जो है वो ड्राइंग्स नहीं कर रहे, वो लोन दे रहे पार्टनरशिप फर्म को. Mr. A is providing loan to the partnership firm, so obviously for this loan the partnership firm is required to pay some interest to Mr. A, interest on A's loan. okay, interest on A's loan. तो ये जो interest है, it is also an expense for the partnership firm. This what I want to say. So apart from salary, apart from commission, apart from interest on capital, one more expenses that you got to know is what? Interest on advances. Obviously these advances are being made by the partner to the partnership firm, and on behalf the firm is required to pay interest to the partner. I hope it is clear. okay, तो ये सब जो होते हैं एक्सपेंसेस है किसके, पार्टनरशिप फर्म के. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ सरप्लस बच जाता है प्रॉफिट का,
सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन अगर मान लीजिए एडवांसेस है वो भी देने के बाद कुछ सरप्लस अगर बच जाता है ना, तो वी ट्रांसफर दैट सरप्लस एज डिविजिबल प्रॉफिट। इसको एक प्रॉफिट रेशियो में हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, सो if I talk about the debit side of a PL appropriation account, or indirectly I want to say the expenses of a partnership firm, I will say it is salary, commission, interest on capital, interest on advances, and the remaining profit is called the divisible profit that will be distributed among the partners in some ratio. Okay, acha, if I talk about the credit side or the income of the partnership firm, then obviously the first income that you get from the profit and loss account is the net profit. The first income that you get from the profit and loss account is the net profit, and the other income that we talked about just earlier is interest on drawing. Because interest on drawing में क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल लेके जा रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल लेके जा रहे हैं फर्म से, तो उनको फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है पार्टनर्स को, पार्टनर्स फर्म को पे कर रहे हैं, हु आर पेइंग, पार्टनर्स आर पेइंग द फर्म। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में तो इनकम हुआ ना, और जब फर्म पे कर रहा था अपने पार्टनर्स को तो उसके लिए क्या था, एक्सपेंस था। ठीक है, दो इंटरेस्ट का बात मैंने बोला, एक बोला इंटरेस्ट ऑन, अच्छा सुनो, तीन इंटरेस्ट कैपिटल। इसका मतलब क्या है, बिजनेस में कैपिटल लगाया, ठीक है ना, किसने लगाया, पार्टनर ने लगाया फर्म में कैपिटल, तो फर्म ने पार्टनर को पे किया इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आगे फर्म से पार्टनर कैपिटल लेके जा रहे हैं, ठीक है, पार्टनर कैपिटल लेके जा रहे हैं, तो इस केस में तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये, बिकॉज कैपिटल क्या किया है, विदड्रॉ, कैपिटल क्या किया है, विदड्रॉ। तो कैपिटल विदड्रॉ करने के लिए जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। हमें अकाउंटिंग फर्म का करना है, इसीलिए मैं फर्म पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा हमेशा, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम, इसीलिए क्रेडिट साइड में आता है। ओके, इसके अलावा मैंने क्या बताया, अगर फर्म बैड टाइम में जा रहा है तो उस केस में हो सकता है कि पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, ठीक है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो वो वाला लोन का के लिए भी फर्म क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। तो ये वाला इंटरेस्ट भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, बिकॉज फर्म पे कर रहा है। जहाँ पे फर्म रिसीव कर रहा था इंटरेस्ट वो इनकम है, और जहाँ पे कर रहा है वो उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट में वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, पार्टनरशिप किस लिए फॉर्म हुआ है, पर्पस क्या है पार्टनरशिप का, पार्टनर्स कौन कौन है, किसने कितना कैपिटल लगाया, अगर एडमिशन करना है तो कैसे करना पड़ेगा, अगर आपको रिटायरमेंट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो कितना देना है, कमीशन देना है तो कितना देना है। तो वी कैन डायरेक्टली से अग्रीमेंट है तो उसका मतलब अंदर में क्या लिखा होगा, इसके अंदर में लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो अग्रीमेंट के अंदर में लिखा होता है। अच्छा, तो देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस डीड, अग्रीमेंट नहीं करेंगे, ए एंड बी आर गुड फ्रेंड, ठीक है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड ये लोग चाहते हैं कि विदाउट एनी अग्रीमेंट वी वांट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, इट्स ओके, यू कैन फॉर्म। तो क्या आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, ऑब्वियसली बनाओगे, क्या आप लोग सब कुछ करोगे, हाँ सब कुछ करोगे, देन व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ पार्टनरशिप डीड एंड नॉट हैविंग अ पार्टनरशिप डीड, द डिफरेंस लाइज ओवर हियर। अगर एक डीड है, अगर एक डीड है तो इसका मतलब क्या है कि आपके टर्म्स क्लियर है, आपके टर्म्स क्लियर है, जो भी इसमें लिखा हुआ है उस हिसाब से होने वाला है, बिकॉज आपके टर्म्स क्या है, क्लियर है। बट इन केस यू डोंट हैव एनी डीड, अगर आपके पास डीड नहीं है और डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट के केस में आप क्या टर्म्स यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ईयर एंड में आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया 15 लाख्स, ठीक है, दो पार्टनर है ए एंड बी, अभी ए बोल रहा है कि यार 15 लाख हमने जो कमाया है ना उसमें मेरा मेहनत तेरे से डबल है। ए क्या बोल रहा है बी को कि मेरा जो मेहनत है तेरे से डबल है, देयरफॉर मेरे को सैलरी मिलना चाहिए तेरे से डबल, मेरे को 2 टाइम्स मिलना चाहिए सैलरी, ठीक है। बट बी इसमें अग्री नहीं हो रहा है, बी बोल रहा है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें 2 टाइम्स मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए 1.5 टाइम्स, तुम 2 टाइम्स, हाँ तुमने ज़्यादा काम किया है बट तुम 2 टाइम्स बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें 1.5 टाइम्स बोलना चाहिए, मिलना चाहिए, सॉरी। अभी यहाँ डिस्प्यूट हो गया, ए बोल रहा है ट्वाइस, बी बोल रहा है नहीं 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, तो इसमें डिस्प्यूट को किस तरह सॉल्व करेंगे? द आंसर इज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज देर इज नो डीड। सो अगर डीड नहीं होता है ना, तो इन केस देर इज नो डीड, तो पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास डीड नहीं है तो आप सैलरी ही किसी को नहीं दोगे। अच्छा, सैलरी अगर नहीं देंगे तो क्या पार्टनर का लॉस हो जाएगा, पार्टनर का कुछ फायदा नहीं होगा? तो प्लीज समझो, सैलरी से लेके हर एक चीज इज पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ओनली। हर एक चीज नेट प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। नेट प्रॉफिट से मिलता है सैलरी, नेट प्रॉफिट से मिलता है कमीशन, नेट प्रॉफिट से मिलता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट से आपको मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, इन केस सैलरी नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, तो ये तो मिलेगा ना डिविजिबल प्रॉफिट। इसके लिए कोई टर्म्स नहीं चाहिए, इसके लिए बस यही टर्म्स है कि अगर आपके पास डीड है देन बेटर, रेशियो लिखा होगा आपका। अगर आपके पास डीड नहीं है तो आपको इक्वली बांटना पड़ेगा 1:1 में। अगर आपके पास डीड नहीं है तो आपको इक्वली बांटना पड़ेगा 1:1 में, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है कि तुमको किसी तरह का लॉस हो गया, वो 15 लाख रुपया बर्बाद हो गया, आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ देर इज नो डीड you might not get anything, but obviously one thing you will get is what? The divisible profit। उस पर आपका हक कोई छीनने वाला नहीं है, तो वो आपको मिलेगा। तो ऐसा अगर कुछ मिसकंसेप्शन है कि प्रॉफिट यार लॉस हो गया फिर तो डीड होना ही चाहिए था, नहीं होता तो ये हो जाता, हाँ डीड होना चाहिए था। डीड होता तो क्या होता? सैलरी को लेके, कमीशन को लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं चलता, एंड इवन द रेशियो फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, उसके लिए भी कोई डिस्प्यूट नहीं चलता। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज आपके पास डीड नहीं है तो फिर क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि इफ देर इज नो डीड, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट अगर देंगे तो 1:1 के रेशियो में देंगे। किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो में। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला कुछ भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म के लिए इनकम है वो भी नहीं मिलेगा, एंड जो एक्सपेंसेस है वो भी नहीं देना है। बस सिंगल ट्रीटमेंट क्या बोला गया? रेशियो में डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रेशियो क्या होने वाला है? इक्वल, 1:1। सो इफ देर इज नो डीड वर्सेस देर इज डीड, व्हाट विल हैपन? आइए देखते हैं। तो यहां पे बोल रहा है डीड, यहां बोल रहा है नो डीड, व्हाट विल हैपन? आओ, तो सैलरी दे सकते हैं क्या? अगर डीड में लिखा है तो मिलेगा, अगर डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगा। कमीशन दे सकते हैं क्या? जो डीड में लिखा है मिलेगा, कमीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में लिखा है जितना परसेंट उतना परसेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर आपके डीड में लिखा हुआ है जितना परसेंट लिखा हुआ है उतना आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म को, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो रेशियो आपके डीड में लिखा है उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट हमेशा 1:1 दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ये बहुत अच्छा चीज है। इस पे क्या बोला गया? बोला यार आपको मैंने पहले इसे डायलॉग सुनाया, द फर्म इज पासिंग थ्रू बैड टाइम, द फर्म इज पासिंग थ्रू बैड टाइम, एंड ऐसे केस में एक पार्टनर मिस्टर ए इसको हेल्प कर रहा है बाय एडवांसिंग लोन, बाय एडवांसिंग लोन। तो इसके लिए हमारा पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि ऐसे सरकमस्टेंस में फर्म को ए को इंटरेस्ट पे करना चाहिए, हालांकि आपके डीड में नहीं लिखा हुआ है। आप ये बताओ, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। बिजनेस में आप काम करते हो, सैलरी मिलता है, कोई स्पेशल काम करते हो, कमीशन मिलता है, आपने कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। बट आप ये जो एडवांस दे रहे हो ना, ये क्यों दे रहे हो? ये आप रेगुलरली देते रहते हो क्या? नहीं, यू आर हेल्पिंग द फर्म, यू आर हेल्पिंग द फर्म। ओके, तो ऐसा केस में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर पार्टनर ने किसी भी तरह का लोन एडवांस किया है फर्म को, तो फर्म को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 6%, एट द रेट 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 6% फ्लैट रेट है, इसको चेंज नहीं करना है आपको। मैक्सिमम नहीं बोल रहे, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बोल रहा है, फ्लैट रेट बोल रहा है, फ्लैट 6% इज द रेट आपको पे करना पड़ेगा। मतलब किसको? फर्म को पे करना पड़ेगा, पार्टनर को। अभी देखो मिस इंटरप्रिटेशन, मैंने बोला 6% किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म।
मैं इसका बात बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन है, एडवांस बाय होम, पार्टनर टू फर्म। अभी बच्चे इसको मिस इंटरप्रिटेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही बोल देंगे 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही क्या बोल देंगे 6%। ऐसे बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इन बोथ सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड, 1 मार्क्स क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ देयर इज नो डीड। बच्चों को बस याद रहता है 6% एंड दे राइट 6% एंड यू विल गेट अ बड़ा सा अंडा। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मिलेगा ही नहीं ना, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। हम जो 6% चिल्ला रहा है किसके लिए बोल रहा है? आई एम शाउटिंग 6% फॉर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ठीक है, वो भी कौन किया है? पार्टनर किया है। किसको? फर्म को। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात तो बोले ही नहीं, हम क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मेड बाय पार्टनर टू द फर्म। उसके लिए कितना परसेंट है? 6% फ्लैट रेट, 6% फ्लैट रेट। ओके, आगे ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल in case of no deed? Again everybody used to write 6%. Again you will get a बड़ा लड्डू। Why? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने बात किया ही नहीं। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मेड बाय द पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लैरिटी कि हमने डिस्कस कर लिया कि डीड होगा तो क्या सिचुएशन, डीड नहीं होगा तो क्या सिचुएशन। अगर डीड होगा तो सारे टर्म्स को हम लोग मानेंगे, जो भी टर्म्स लिखा हुआ है। अगर डीड नहीं होगा तो हम वो टर्म्स को नहीं मान सकते, बिकॉज वहां पे डीड दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये हुआ एक बात। आगे सुनिए, समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, सपोज डीड भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको लिख के दिया है, सपोज 7% ले लो उसको, 7%। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है ना कि ड्राइंग्स आपने किया कब? एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैंने अप्रैल से लेके मार्च तक का साल है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से लेके मार्च तक का ईयर है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ईयर है। अगर मैंने अप्रैल को ड्राइंग किया है तो मुझे अप्रैल से मार्च कितने महीने होते हैं? 12 महीना होते हैं। तो मुझे 12th मंथ का ड्राइंग देना चाहिए, इंटरेस्ट पे करना चाहिए। सपोज मैंने अप्रैल में 10,000 ड्रॉ किया तो मेरा, और 7% मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो व्हाट इज माई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? माई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10,000 इंटू 7%, और 12 महीने के लिए मैंने किया ना, तो 12/12। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही नहीं कि आपने अप्रैल में किया है, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि 10,000 आपने 7% में ड्रॉ तो किया है, बट आपने मिड ऑफ द ईयर किया है। ये एजम्पशन है। हर एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जहां पे मेंशन्ड नहीं है वहां पे आपको 6 मंथ पीरियड मतलब मिड ऑफ द ईयर अज्यूम करना पड़ेगा। वेन एवर इट इज गिवन 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सपोज 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आप 10,000 रुपीज ड्रॉ कर रहे हो, और कब ड्रॉ कर रहे हो ये पता नहीं है, तो ये सर्टेन है, ये एजम्पशन है कि 10,000 इंटू 8% आपको करना तो है, बट आप 12/12 नहीं कर सकते, ये ड्राइंग पूरा साल का नहीं है, ये 6/12 है। ये एक एजम्पशन है जिसको आपको लेके ही सम बनाना पड़ेगा। क्लियर है? So in this video we have only covered so far that how we will be treating no deed versus deed। अगर सम में deed नहीं है और deed है तो treat कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा आइटम्स का आप इंक्लूड ही नहीं करोगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पे इंक्लूड करोगे। अच्छा, और क्या बोला यहाँ पे? डीपी का रेशियो क्या होगा वो बता दो मेरे को। यहाँ पे रेशियो हमेशा होगा 1:1, और यहाँ पे जो मेंशन्ड रेशियो है वो होगा। और इंटरेस्ट ऑन एडवांस इन बोथ द केसेस क्या होने वाला है बोलो? 6%। ठीक है, और अगर डीड है, सुन लो मेरा बात, अगर डीड है और डीड में लिखा है कि तुमको 9% देना है इंटरेस्ट ऑन एडवांस, तो 9% देना है। लेकिन अगर नो डीड या इंटरेस्ट ऑन एडवांस के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है डीड में, whenever the deed is silent about interest on advances, तब तो आप क्या लोगे? 6%। whenever there is a silence for the purpose of interest on advances, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है हेल्प करने के लिए, ये हेल्प तुम लिख के देगा नहीं बार बार, बट याद रखना जब पार्टनर लोन दे रहा है यार फर्म को, तो वो उसको हेल्प करने के लिए दे रहा है, तो यहाँ पे हमेशा रेट क्या होगा? 6% होगा। ऑलवेज द रेट विल बी 6%। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड देन वी विल सी दैट व्हाट इज द क्लैरिटी, एंड उसके बाद कुछ डाउट्स अगर आपको है तो प्लीज आस्क, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना? सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट सम सम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
Okay, so as per our discussion till the last topic, we are going to solve some questions. Okay, तो पहले के जो questions रहेंगे वो थोड़ा analysis wise रहेंगे, like you have to analyze because here we have to clear the concept of PL APRO. Once we are clear with everything, then we will go and solve the proper sum. Okay, so यहाँ पे अपने क्या होने वाला है, mainly हमारा जो concepts अभी तक हमने जो पढ़ा है वो भी और clear होने वाला है. ठीक है, please see. Harshad and Diman are in partnership since April 1, 2016. No partnership agreement was made. So you can see clearly that there was no deed. They contributed rupees 4 lakh and 1 lakh as capital. दोनों उन लोगों ने 4 लाख 1 लाख capital लगाया. Okay. In addition, Harshad advanced an amount of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 16. So here comes the play. You can see Harshad जो है उसने advance किया है firm को 1 lakh. तो अगर फर्म को 1 लाख एडवांस किया तो आप फटाफट मेरे को बताओ, हालांकि इसके पास डीड नहीं है, लेकिन हर्षद ने एडवांस किया है ना. तो हमने अभी पढ़ के आया कि अगर हमने कोई पार्टनर ने कोई लोन एडवांस किया है फर्म को, तो अगर डीड नहीं भी है तो उसको 6% क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मिलता है ना. 6% इंटरेस्ट ऑन एडवांस उसको मिलता है, इवन देयर इज नो डीड और नो अग्रीमेंट. आगे टू द फर्म 1 लाख दिया है फर्म को ऑन 1st October 16. आगे ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1st August. बोला प्रॉब्लम हो गया, 1st August से बिजनेस में नहीं आया टू 30th September 17. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 17 अमाउंटेड टू रुपीज 1,80,000. बोला जो नेट प्रॉफिट आया 31st March 17 का वो कितना आया, 1,80,000. डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड दिमान. डिस्प्यूट तो होना ही था बिकॉज एक पार्टनर फॉर्म आ नहीं रहे, तबियत ठीक नहीं है उसका. ठीक है, तब कोरोना वायरस नहीं आया था, डोंट वरी. तो उस टाइम में क्या हुआ, एक पार्टनर बिजनेस में आ नहीं रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो डिस्प्यूट हो गया. अभी आप बताओ मेरे को फटाफट, डीड है कि नहीं है, नहीं है. और मैंने बोला था आपको डीड नहीं है, डिस्प्यूट हो जाएगा, तो क्या करना होगा. पहले क्वेश्चन पढ़ते एक बार. हर्षद क्लेम्स, हर्षद क्या बोल रहा है सुनिए. हर्षद बोल रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन. बोला मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन मिलना चाहिए. साथ ही साथ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल. बोलता है जिसने जितना कैपिटल लगाया है उसको उतना शेयर मिलना चाहिए प्रॉफिट का. जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल. जिसने जितना शेयर लगाया है, कैपिटल जितना लगाया है, उस कैपिटल के रेशियो में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. ओके, ये तो किसने बोला, हर्षद ने. पहले आप मेरे को जस्टिफिकेशन दो हर्षद का कि आप कहां तक इसके लिए सहमत हो. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलना चाहिए ना, डीड नहीं है. तो फटाफट आप मेरे को बोलो, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है ये तो उसको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज डीड है कि नहीं है, देयर इज नो डीड. अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये मैं दूंगा, लेकिन 10% नहीं दे सकता हूं. आई विल गिव कितना, 6%. उसने जो एडवांस किया है फर्म को, एडवांसेस के ऊपर में कितना मिलता है फटाफट बताओ मेरे को आप. 6% मिलता है. ठीक है ना, कितना मिलता है, 6%. ओके, 1 मिनट. अभी पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना, आ रहा है ना अभी. ओके, तो हर्षद का बोलना है कि 10% उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसको, कैपिटल तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है. वी कैन नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पॉसिबल नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बताओ. उसके बाद दिमान क्या बोलता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. बोला ये तो बात तुमने सही कहा, प्रॉफिट इक्वली बांटना चाहिए, एज देयर इज नो डीड, तो 1:1 इक्वली बांटना चाहिए. दिमान का ये वाला क्लेम सही लग रहा है मेरे को. आगे, ही शुड बी अलाउड रुपीज 2,000 पर मंथ एज रेमुनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद. बोलता हर्षद नहीं था तो मैंने खुद से मैनेज किया बिजनेस, तो मुझे 2,000 अलग से मिलना चाहिए. आई शुड बी गिवन रेमुनरेशन 2,000 पर मंथ. बट आप मेरे को बताओ, अगर डीड नहीं है, प्लीज इमोशन में मत बह जाना, बी एज पर द एक्ट. अपना एक्ट क्या बोला कि भाई साहब डीड नहीं है आपके पास, और अगर आपके पास डीड नहीं है तो आपको किसी भी तरह का सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा 2,000 पर मंथ. इमोशन पे मत जाओ, अपने लॉ पे चलते हैं. आगे,
नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6%। बोला अरे यार तुम भी गलत बोलते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल ही नहीं सकता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। हाँ, लोन जो दिया था उस पर 6% ठीक बोला इसने। हमने तो बोला है कि लोन पे हम कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना देंगे, 6% देंगे, क्योंकि ये लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को, ठीक है, तो इस पर 6% मिलेगा, ये वाला क्लेम सही है इसका। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही, सही है। इधर बता दो मेरे को, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा, और कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अपना जो पहला आंसर होगा वो होगा हर्षद के लिए, वी विल गाइड हर्षद, देन वी विल गाइड दिमान, ठीक है, एंड देन वी विल प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ट्रीटमेंट करेंगे उसका। तो पहले देख लो, पहले में क्या दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिमान का पहला क्लेम क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो वी आर राइटिंग सजेशन, सजेशन किसको, पहले कौन था, हर्षद ना दिमान, पहले टू हर्षद, ओके। तो आई एम राइटिंग दिस क्लेम टू नॉट दिमान, हर्षद। तो मैं लिख रहा हूं हर्षद को, बोल रहा हूं यार तुम बोल रहे हो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एज पर द एक्ट पॉसिबल नहीं है। तो क्या मिलेगा देखो, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड, रीजन बोलो आप लोग मेरे को, नो डीड, रीजन तो यही है ना, डीड नहीं है, और डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट अलाउ नहीं करता है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड, उस पर कितना दे सकते हैं हम लोग, 6%। ये हमने समझा दिया किसको, हर्षद को। अरे वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर द कॉस्ट अकाउंटेंट, वी विल गाइड यू ना, तो वी आर गाइडिंग हर्षद एंड दिमान, वी आर टेलिंग देम यार पॉसिबल नहीं है तुमको मिलना, पॉसिबल नहीं है, डीड नहीं है तुम्हारे पास। और इधर में बोला इंटरेस्ट लोन मिलेगा बट कितना, 6%, कैपिटल नहीं मिलेगा। चलो एक चीज समझा दिया उसको, और क्या समझाना है उसको, बोले प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट भी कैसे होगा, इक्वली, एज देयर इज नो डीड, डीड नहीं है आपके पास, तो प्रॉफिट भी क्या होने वाला है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। आगे अभी चलते हैं, हर्षद तो हो गया, दिमान के पास, डिम। तो दिमान ने बोला पहले कि प्रॉफिट इक्वली बांटना है, तो प्रॉफिट इक्वली बांटना है, इसके लिए दिमान इज करेक्ट, वो सही बोलता है, दिमान का फर्स्ट पॉइंट यही था, प्रॉफिट इक्वली बांटना है। नंबर 2 उसने बोला रेमुनरेशन, तो रेमुनरेशन तुमको मिलेगा 0, नो डीड, तो नो डीड, तो रेमुनरेशन कैन नॉट बी पेड, मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ 0, आपको समझ जाना, रेमुनरेशन कैन नॉट बी पेड, वाई, बिकॉज देयर इज नो डीड। और नंबर 3 उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और लोन भी 6%, तो हम उसको बोलते हैं यार कैपिटल देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नो डीड, कैपिटल पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट लोन इज अलाउेबल ऑब्वियसली, और उसने 6% कहा तो उसने उसका क्लेम भी सही है, 6% इंटरेस्ट लोन एडवांस मिलेगा, कैपिटल नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने इन लोगों को गाइड कर दिया, हमने गाइड किया इन्हें कि देखो भाई ये सीन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा बिकॉज नो डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बट 6% प्रॉफिट बांटना पड़ेगा इक्वली, ये हमने गाइड किया किसको, हर्ष को। और दिमान को हमने क्या बोला, प्रॉफिट इक्वली बटेगा भाई साहब, ठीक है, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, डीड नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, डीड नहीं है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस मिलेगा, वो भी कितना, 6%, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना है कि 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट था, और हर्षद ने 1 लाख का लोन दिया था फर्म को 1 अक्टूबर 16 को, ये फिगर्स हमारे काम का है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को फटाफट बता दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। द फॉर्मेट गोज लाइक दिस, हियर वी राइट द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, हियर वी राइट द इनकम ऑफ द फर्म, ओके, ये फॉर्मेट होता है अपना। चलो मैं वापस से बना रहा हूँ, प्लीज सी। तो डेबिट साइड
PL एप्रो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आई शुड राइट बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना आया 1,80,000, इतना का आया, ठीक है ना। अभी आप मेरे को बताओ, कोई सैलरी देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट देना नहीं है, कोई कमीशन देना नहीं है, बस एक ही आइटम फॉर्म को पे करना है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। किसको पे करना है, हर्षद को, आई एम राइटिंग हर्ष। अच्छा आप लोग पढ़ लो एक बार यहाँ पे आके, हर्षद ने कितना का लोन दिया, 1 लाख का, कब दिया, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को दिया, और 31 मार्च को हमारा काउंटिंग ईयर एंड होता है, तो कितना महीना हुआ आप मेरे को बताओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ पीरियड आपको दिख रहा है, स्पेसिफिकली यहाँ हो गया 6 मंथ। चलिए तो 1 लाख का लोन उसने दिया है, 1 लाख का आप बताओ, डीड नहीं है, डीड में है ही नहीं डीड, तो इंटरेस्ट लिखा नहीं है, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब का बात नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस का बात हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस कितना लेते हैं हम लोग, 6%, एंड कितना महीने के लिए लेंगे, 6 महीना, 6 मंथ के लिए इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज साइलेंट था। अरे आपको दिया हुआ डायरेक्टली डेट अक्टूबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, जैन, फेब, मार्च 3 महीना, ठीक है, 6 महीना हो गया। चलो बोलो कितना आएगा, तो ये अपना आएगा 1 लाख का 6% कितना आता है, 6,000, 6/12 मतलब 3,000, तो ये 3,000 निकल के आएगा। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं, तो आप मेरे को बताओ और कौन सा आइटम आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ये सब तो मिलना नहीं है, तो जो भी बच के आया वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी बच के आया हमारा क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। हर्षद एंड दिमान क्या बच रहा है बताओ मेरे को, बैलेंसिंग करके बताओ। इधर में 1,80,000 इज हेवियर, 1,80,000, यहाँ भी 1,80,000 इज हेवियर, 1,80,000 minus 3,000 is how much, 1,80,000 minus 3,000, 1,77,000 is my divisible profit। इसको अपने को 1:1 में बांटना है, ये जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है 1,77,000, इसको अपने कैसे बांटेंगे, 1:1 में, तो 88,500 एंड 88,500 आएगा दोनों का, 88,500 एंड 88,500, दैट्स इट, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन नोट इट लेटर ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब में अपने डिस्कस किया दैट व्हाट शुड बी आवर ट्रीटमेंट, है ना, एंड ट्रीटमेंट जानने के बाद हमने क्या किया, सम को सॉल्व किया। दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड वो भी उसके अंदर में अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए सम को सॉल्व किया हम लोग, ठीक है ना। कंसेप्ट भी क्लियर किया कि अगर डीड नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है। लुक, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो रेम्यूनरेशन, कुछ भी नहीं है। अगर सेम सम में डीड होता तब ट्रीटमेंट अलग होता ना, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते, रेम्यूनरेशन भी देते, ठीक है। बट डीड होता तब तो किसी के बोलने से तो नहीं होता, एंड इमोशन में भी नहीं चलता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए होमवर्क है, जो आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन खुद से करना है आपको। आई विल चेक द आंसर, प्लीज देखो, यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। Okay, Akriti and Bindu entered into partnership for making garment on 1st April 16 without any partnership agreement. So the point to be noted, there is no partnership agreement. So hope you know what to do the next. They introduced capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively on 1st October 16. तो बोला यार 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया और 1 अक्टूबर को कैपिटल लगाया, ठीक है। आकृति एडवांस रुपीज 20,000 बाय वे ऑफ लोन, तो 20,000 का एडवांस दे रही है आकृति टू दी फर्म। तो आकृति ने एडवांस किया है लोन फर्म को, ठीक है, विदाउट एनी अग्रीमेंट एज एन इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट का अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। आप बताओ अग्रीमेंट नहीं है तो भी जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट ऑन एडवांस है कितना मिलेगा, 6%। आगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 17 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 43,000, तो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट, 43,000।
पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन प्रॉफिट। तो क्या बोला, पार्टनर इंटरेस्ट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में समझ नहीं पा रहे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर ए सॉल्यूशन। तो आपको बोल रहे हैं दो पार्टनर है आकृति एंड बिंदु, एंड बोल रहा है इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है दैट हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज्ड, एंड उसके साथ साथ हाउ मच क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज, वो उनको पता नहीं है। तो आप उनको गाइड करो। तो पहला बात हमारा गाइडेंस ये होगा कि भाई साहब या बहन जी आपके पास डीड नहीं है। तो अगर आपके पास डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिख के बताएंगे इसको हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेमुनरेशन, मतलब और भी कोई पेमेंट, एनी रेमुनरेशन बाय वॉट एवर नेम इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और एनी रेमुनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इज नॉट अलाउड। ओनली आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, वो भी कितना मिलेगा आपको, 6%। उसका भी कैपिंग कितना है, 6% मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट यही होने वाला है और आपको बांट के दिखाना भी है। तो आप मेरे को फटाफट बोलो 43,000 प्रॉफिट है इसका, और उसने कितने का लोन दिया है, 20,000 का लोन दिया है। ठीक है, कितने का लोन दिया है, 20,000 का लोन दिया है। क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है कि लोन कब दिया है, तो मैं मान रहा हूं 6 मंथ का लोन है, मैं मान रहा हूं 6 मंथ का लोन है। तो आप मेरे को बताओ बाय नेट प्रॉफिट 43,000, कोई इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज डीड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस तो आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ठीक है, कोई आकृति ने दिया था, 20,000 का लोन था, कितना परसेंट लूंगा मैं, 6% लूंगा, और क्योंकि कुछ मंथ्स दिया हुआ नहीं है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 6 महीने का है। अपने मिड ऑफ द ईयर एज्यूम करते हैं हमेशा। तो कितना का आ जाएगा बोलो आप मेरे को, दिस विल कम टू 600 रुपये। तो 600 का आपका निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो व्हाट इज द डिविजिबल प्रॉफिट आप मेरे को बताओ, दिस माइनस 43,000, 42,400। अब ये जो 42,400 है इसका भी डाउट है इन लोग को कैसे बटने वाला है। तो 42,400 कैसे बटेगा आप बताओ, डीड नहीं है, डीड नहीं है, ये कैसे बटेगा डिविजिबल प्रॉफिट, ये बटेगा कैसे, 1:1 में, आकृति एंड बिंदु ऐसे ही बटेगा ना 1:1 में। तो 20,900 आकृति, 20,900 बिंदु, 1:1। टोटल में क्या आएगा 43,000, जो कि हेवियर था 43,000। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है फॉर बैलेंसिंग या किसी भी चीज़ का, यू कैन लेट मी नो, आई विल क्लियर इट आउट सेपरेटली। मैं सेपरेटली बता के क्लियर आउट कराऊंगा। यहाँ 43 हेवियर था, तो 43 माइनस 600 मैंने किया तो 42,400 आया डिविजिबल प्रॉफिट। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, मैंने कहीं से निकाला नहीं है इसको, दिस माइनस दिस किया है बस, 43,400। और इसको बांटेंगे कैसे हम लोग, 1:1 में। तो हालांकि ये होमवर्क था बट मैंने ही सॉल्व करा दिया आपको। चलो एक और क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैंने पहले बैच में करवाया है इसीलिए यहाँ पे टिक वगैरह किया हुआ है। ओके, राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख। तो बोल रहे 2 लाख और 3 लाख का कैपिटल है इनका। चलो बढ़िया बात है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 16-17 इज 23,200। तो बोला नेट प्रॉफिट कितना है, 23,200 एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। माय गुडनेस, अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है। दे शेयर द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। तो बोल रहे कैपिटल रेशियो में बांटते प्रॉफिट को। तो 2 लाख और 3 लाख अगर कैपिटल है, आप मेरे को बताओ 2 लाख 3 लाख कैपिटल है और ये कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं, तो किस रेशियो में बांटते होंगे, 2:3। 2 लाख और 3 लाख का मतलब क्या रेशियो, 2:3। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 2:3, बिकॉज इनके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। पहला बात, दे हैव अग्रीमेंट, नहीं तो 1:1 ही लेते। अग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि जो कैपिटल है उसमें बटेगा। तो कैपिटल क्या है, 2:3, उसमें बटेगा। चलो ओके। आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बोल रहा है कि सैलरी भी मिलने वाला है। अच्छा, कितना का 5,000 पर मंथ,
टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10%, और बोला पार्टनर्स कैपिटल पे कितना मिलने वाला इंटरेस्ट 10%. ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रीव 7,000 एंड शिखा विड्रीव 10,000 फॉर पर्सनल यूज. बोला ड्रॉइंग्स भी है सब में. You are required to prepare profit and loss. I will not solve this sum. I will just help you out with the layout of this sum. आप खुद बनाओगे, the next day वापस मैं सॉल्व करूंगा. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों पार्टनर को. मैं ए बी लिख रहा हूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ए बी, ठीक है. वॉट एवर द कैपिटल वॉज इंटू जो भी परसेंटेज दिया था आपको, ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेना बाद में याद से. नेट प्रॉफिट सब में आपको दिया हुआ था, वो आपको उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप दोगे दोनों पार्टनर को, मैं ए भी लिख रहा हूं. जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे तो जो भी ड्राइंग है दैट ड्राइंग इनटू जो परसेंट दिया दैट परसेंट इनटू आप 6/12 करोगे बिकॉज डेट दिया हुआ नहीं है. इनटू आप 6/12 करोगे बिकॉज डेट दिया हुआ नहीं. आपको खुद से बनाना है, प्लीज यार बनाओ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, जो भी कैपिटल है इंटू परसेंटेज, जो भी कैपिटल इंटू परसेंटेज. नेट प्रॉफिट आपको दिया है, आप बैठा देना. ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है, आप इंटू परसेंटेज इंटू 6/12 भी कर देना वापस से. इंटरेस्ट ऑन जितना भी ड्राइंग है इंटू परसेंटेज जो भी दिया है इंटू 6/12 कर देना, बिकॉज आपको डेट दिया हुआ नहीं है ड्राइंग का. आगे इसके बाद और क्या था, सैलरी भी था ना. टू सैलरी जिसको भी मिल रहा था, दोनों को मिल रहा है, दोनों को जितना भी पर मंथ है. अगर पर मंथ है तो इंटू 12 कर लेना. हम लोग पर एनम बनाते हैं ना, इंटू 12 कर लेना, ठीक है. प्लीज सी, वापस से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं एक बार. तो कैपिटल वाज 2 लाख एंड 3 लाख. All right, I have already discussed that the profit sharing ratio will come to how much, 2:3. ये डिस्कस मैंने पहले कर दिया है, ठीक है. चलो आगे देखो. अभी यहाँ पे दिया इतना का प्रॉफिट है, तो बाय नेट प्रॉफिट 23,200. 2 लाख और 3 लाख का कैपिटल है, बहुत अच्छी बात है. एंड 5,000 पर मंथ टू शिखा, शिखा को बस मिलता है. तो व्हाट इज द सैलरी टू शिखा, 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12 सैलरी बस शिखा को मिलेगा. कितना, 5,000 इंटू 12 टू सैलरी. उसके अंदर में डैश देगा शिखा, कितना, 5,000 इंटू 12. आगे एन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10%, कितना मिलेगा 10%. तो 2 लाख का 10% 20,000, ठीक है. तो राखी 3 लाख का 10% 30,000 टू शिखा. इसमें 6/12 नहीं करना है, ये स्टार्टिंग से होता है. इसमें 6/12 नहीं करना है, इसमें करना है. विड्रीव कितना, अच्छा अभी क्वेश्चन आता है किसमें किसमें करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कभी नहीं करना है. इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड ड्राइंग में कर देना 6% नहीं दिया है तो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कभी मत करना, कैपिटल शुरू से होता है. अच्छा ये बताओ, राखी विड्रीव 7,000, शिखा विड्रीव 10,000, इसमें करेंगे ना फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है. अच्छा ये बताओ, यहां पे रेट दिया हुआ नहीं है, रेट दिया है क्या, देयर इज नो रेट गिवन. और कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको रेट दे रहा हूं, बिना रेट का चलेगा नहीं, कुछ भी रेट अज्यूम नहीं कर सकते. तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट खुद से दे रहा हूं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है आपका 8%, ठीक है. आपको क्वेश्चन खुद से करना है, मैं नहीं हेल्प करूंगा. एक ही पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, शायद शिखा को, तो जो भी ये सैलरी इंटू 12 कर लेना आप उसको. तो उसके बाद क्या निकल के आएगा, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने दे दिया, नेट प्रॉफिट आपने लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया, सैलरी आपने दे दिया. जो भी आएगा वी विल कॉल इट व्हाट, टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है. और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2. राखी एंड शिखा जो भी थे उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे द रेशियो ऑफ 3:2. एक मिनट, शायद 2:3 है, आप चेक कर लेना. 2:3, 2 लाख 3 लाख, ठीक है. इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट. आप लोग उसको नोट कर लो फटाफट, ये फॉर्मेट आप नोट करो और आप खुद से बनाना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी डिविजिबल प्रॉफिट, उसको बांटना 2:3 में. दैट्स इट. एक बार आप ट्राई करो, अगर नहीं बनता है ऑब्वियसली आई विल शेयर द सॉल्यूशन. एंड आपको बस बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो, ठीक है. आपको कैपिटल अकाउंट नहीं करना है. कैपिटल अकाउंट मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा, डिस्कस कर लूंगा मैं नेक्स्ट डे. उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट करना है. अभी आपको बस क्या बनाना है, PL एप्रो. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू.